Hello, assalamu alaikum. This is me, Dr. Jahangir, and you are watching me on my YouTube channel, that is Dr. Jahangir Khan. Well, today I am going to discuss a very important topic, and this topic is very important for each and every doctor, especially in wards. जितने भी डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो हाउस ऑफिसर्स हैं या जो पीजीज हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. केयर ऑफ द बेड रिडन पेशेंट. बेड रिडन पेशेंट्स में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस जो है हमने उस पर फोकस करना है. नंबर 1, एस्पिरेशन नमूनिया. इस पे हमने फोकस करना है. पहले ये मैं समराइज कर दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं. हाउ कैन वी प्रिवेंट एस्पिरेशन नमूनिया, कमिंग इन टू दैट पॉइंट आफ्टर समराइजिंग दीज थिंग्स. नंबर 2, बेड सोर्स. So a patient is bedridden. Now the second most common complication is bed sore. Number 3, DVT. Third one, we have to take care of the patient who is bedridden. We have to take care of the DVT prevention. Number 4, UTI. Now this is very important. If the person is bedridden, even if he is not catheterized, there is a risk of urinary infection, especially in females. अगर catheterize है तब तो रिस्क है, अगर catheterize नहीं है तब भी रिस्क है, क्योंकि इसका डायरेक्टली एक्सपोजर है. 5, nutrition. So I have summarized all these things. If a person is bedridden, how can we take care of aspiration pneumonia? Point number 1, if the person GCS is low, avoid oral feed. Now this is very important. अगर बंदे का GCS कम है तो most of the time attendant क्या करता है, patient is drowsy और उसको मुंह से दे रहे हैं. जब मुंह से दे रहे हैं तो जिस तरह वो ड्राउजी हैं उसी तरह उसके जो गैग रिफ्लेक्सेस हैं, जो प्रिवेंटिव रिफ्लेक्सेस है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, वो भी उसका डाउन होते हैं. तो तब आपने क्या करना है, अगर जीसीएस कम है तो आपने ओरली नहीं करना, आपने एनपीओ करना है. अगर जीसीएस कम है आपने ओरली नहीं देना, आपने एनजी पास करनी है. आपने एनजी पास करनी है और फिर आपने अटेंडेंट को बताना है कि एनजी से किस तरह देना है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो पीछे से पुश करते हैं, उसमें भी एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं. अभी रिसेंटली जो है मैंने अपने वार्ड में देखा है, एनजी मिसप्लेस हुई थी और ऊपर से उन्होंने पीछे से पुश किया था, उसने एस्पिरेट किया. तो एनजी अगर उस सिरंज आपने अटेंडेंट को समझाना है प्रॉपर, जो फीडिंग सिरंज है उसमें आपने पीछे से पुश नहीं करना. अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो जो है फूट जाना चाहिए. अगर नहीं जा रहा तो either it is blocked or it is misplaced. These are very important things. You have to take care of the bedridden patients. Otherwise the person can die on the spot due to aspiration. So low GCS है, avoid oral feed, pass the NG tube. Now it is the responsibility of the doctor to check the NG tube whether it is in place or not. The second one is, if the GCS is normal, then you have to check for the gag reflex. Most of the time the GCS is normal but the person is having let's for example say stroke, but the gag reflex is not intact and there is a risk of aspiration. How do you check gag reflex? Give something to drink, and if the patient cough on drinking, then it means his gag reflex is not intact. So avoid oral feed in that situation. Third number, if the person is bedridden and the cause is not treatable and there is a risk of recurrent aspiration, feeding jejunostomy is an option to prevent aspiration. Now these are very important steps you have to take care of in a case of bedridden patients, especially with the low GCS, especially with the no gag reflex, and especially if the cause is untreatable. Let's for example say a patient is having stage 4 cancer.
a person is terminally sick, a person is having a global ischemia, a person is having uncorrectable cause. So you have to take care of these things. A person is having recurrent respirations. Let's, for example, say a patient is having cerebral palsy, that is a CP child, and he is having no gag reflex. There is coughing on feeding. So you should go for feeding jejunostomy. Now, this is actually for respiration pneumonia. Now, what you can do for bed sores? For bed sores, ये वार्ड में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनकी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी पेशेंट एडमिट हो गया और वो आपको लग रहा है कि बेड रिडन है, और वे ऐसे ही पेशेंट वार्ड में एडमिट होते हैं जो बेड रिडन ही होते हैं। बेड सोर में एयर मैट्रेस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेशर कम करता है। जो बॉडी और नीचे जो बेड है उसके जो कंटेक्ट एरिया है वो इंक्रीज करती है। जब वो इंक्रीज करती है तो जो प्रेशर है वो कम हो जाती है। जब प्रेशर कम होगी तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कम कंप्रेस होंगे जो लोअर बैक में है। जब वो कम कंप्रेस होंगे तो आपकी परफ्यूजन नॉर्मल रहेगी, और परफ्यूजन नॉर्मल रहेगी तो आपके बेड सोर्स कम बनेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ है पोजीशनिंग। एवरी 4 आवर्स या एवरी 2 आवर्स आपने पोजीशनिंग चेंज करनी है। राइट लेटरल पोजीशन पर लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो आपने पोजीशनिंग चेंज करनी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीवीटी, इसमें आप क्या कर सकते हैं? लिम्ब स्टॉकिंग, एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं। लिम्ब स्टॉकिंग्स ये कर सकते हैं, लिम्ब स्टॉकिंग्स, या हम प्रोफाइलेक्टिक क्लिक्सेन स्टार्ट करते हैं। प्रोफाइलेक्टिक क्लिक्सेन दैट इज या हेपरिन, प्रोफाइलेक्टिक क्लिक्सेन 40 मिलीग्राम सबकट ओडी, या लिम्ब स्टॉकिंग तो कम से कम लगा सकते हैं। ये डीवीटी की प्रोफाइलेक्सिस के लिए है। देन यूटीआई, यूटीआई में जो है आपने अगर कैथेटराइज है तो आपने देखना है कि उसमें पस तो नहीं आ रहा, और आपने अंडर, जब आपने फोरिस कैथेटर पास करना है तो आपने अंडर एसिप्टिक मेजर्स पास करना है। मैंने जितने भी देखे हैं कोई भी जो है इसमें केयर नहीं करता। जो ग्लव्स होते हैं वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड होते हैं। तो इसमें मैं एक ही क्लू बताऊंगा कि ग्लव्स बाहर से मंगवाएं, क्योंकि ग्लव्स बाहर से, अंदर से जो ग्लव्स आती हैं वो एक पैकेट पड़ा होता है। उस पैकेट में जो ग्लव्स होते हैं वो यूं ही बेयर हैंड से आप उठाते हैं तो जो रस्सी में इस पे होता है वो बाहर उससे लगता है, फिर आप उससे वो लगाते हैं, फिर आपसे उस ट्यूब पकड़ते हैं, तो सारे जो जर्म्स हैं आपके हाथों से उस ट्यूब ग्लव्स में, ग्लव्स पे जब लगते हैं तो फिर उससे फोलिस ट्यूब पे लगते हैं। फोलिस ट्यूब पे आप डायरेक्ट जो है कंटामिनेट कर रहे हो इन्फेक्शन को। तो एक तो आप ग्लव्स बाहर से मंगवाए, उसका प्रॉपर मेथड है हाउ टू वेयर द ग्लव्स। आपने बाहर वाली सरफेस को टच नहीं करना, सिर्फ अंदर वाले सरफेस को आपने टच करना है। उसके बाद आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि यूरिन आउटपुट कितना है। अगर यूरिन आउटपुट कम है तो आप हाइड्रेट करो पेशेंट को। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द यूटीआई। और अगर उसमें पस आ रहा है तो उसको चेंज करो, एटलीस्ट 10 to 14 डेज बाद जो है वो चेंज करनी है, 10 to 14 डेज बाद। और अगर आपको लग रहा है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो प्रोलॉन्ग है बेड रिडन की, तो आपने फिर क्या करना है? सिलिकॉन कैथेटर मंगवाना है। आपने क्या करना है? सिलिकॉन। लेकिन इसमें वो ग्लव्स वाली बात ज़रूर इस पर फोकस करनी है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पे एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपने फ्लूइड्स ज़रूरी है। दूसरा क्या है? कैलोरीज। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैलोरीज, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इसमें मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा फ्लूइड्स पे, स्पेशली इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड ऑफ बेड रिडन पेशेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम दीज पेशेंट्स आर डिहाइड्रेटेड, क्योंकि हमने फ्लूइड कैलकुलेशन इनका सही नहीं किया होता है। तो फ्लूइड केयर, कैलोरीज केयर बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया ये चीज़ें हो जाती हैं। फ्लूइड्स की डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपरनेट्रीमिया होता है और उनकी फिर प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। तो बेड रिडन पेशेंट में ये समराइज्ड मैंने किए हैं। न्यूट्रिशन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप you like this video, and please do subscribe my channel
and press the bell icon so that you can get the notification of my new video. Thank you for watching.